अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 7 सुल्तान अहमद मस्जिद की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 77। तो इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज है कि कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन वर्ड्स को पहले तो प्रोनाउंसिएट करें अच्छे से, उसके बाद इस डिक्शनरी ओपन करें और डिक्शनरी ओपन करके इसके सिनोनिम्स जो हैं वो आप फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। एम्बेलिश का मतलब है डेकोरेट, इसका इट्स सिनोनिम इज डेकोरेट। इंटीग्रेट इट्स सिनोनिम इज पुट टुगेदर, मींस चीज़ों को साथ में रखना। स्प्लेंडर मींस खूबसूरत, मैग्निफिशेंस। मेजेस्टी सेम, मैग्निफिशेंस। इल्यूमिनेट मतलब कोई रोशनी दिखाना, जाहिर करना, लाइट अप। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। Our next exercise is that circle the correct antonyms, matlab word opposite. Now here are written some sentences in which these bold words are underlined and we have to find the antonyms of these words. Okay. So here it is written as the Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. I have told you its translation in earlier video, so I am not gonna translate it now. So the word impressive, you have to find its opposite. So its opposite is unimpressive. So we will circle it here this way. Okay. The second is situated in Istanbul, the largest city in Turkey. Largest, it means the biggest. So if we found its antonyms, so the word smallest will be its antonym, so we will circle it here. Further, a heavy iron chain hung at the upper part of the court entrance on the western side. Heavy means that big, bold, and light means that halka, so we will circle this one, light. Further, the upper level of the interior is adorned with blue jade. Outer is not its neither its synonym neither its antonym. So higher its synonym, but we will choose lower because it's antonym of upper. Then the next statement is the flats are covered with carpets. Spread, फैला हुआ. Decorated is not nor its anonym nor antonym nor its synonyms. So the word exposed is its antonym, so we will choose this one. Further, the exercise C is use the following words in your own sentences. You have to find its meaning first, then you have to write in your own words the sentences of these words. So let's start solving this exercise. The first word is impressive. Impressive का मतलब होता है मुतासिर कुन. So its sentence will be like the major has a very impressive personality. You can also like it, the Sultan Ahmad Masjid is very impressive monument in the world. Then the next word is dexterously, means maharat se. The engineer built mason very dexterously. You can use it in your own words, it's up to you. Then the word is spacious, मतलब खुला, कुशादा. Ahmad lives in a spacious house. Ahmad एक बड़े कुशादा घर में रहता है. Then further word is humility, means आजजी. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा was the example of humility. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा आजजी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी. Then the next word is flamboyant, मतलब रंग बिरंगा. I have flamboyant designed color dress. You can write it in your own words. Now you have to write abbreviation of these words like USA, United States America, UK, United Kingdom, and so on. You have to solve this exercise this way. Use any internet, any source to search the abbreviations of these words. Further, नाउ जो हमारी ये एक्सरसाइज है इसमें हमने जो एडवर्ब्स हैं उनको उनकी अप्रोप्रिएट, वी हैव टू पुट दीज एडवर्ब्स इन देयर अप्रोप्रिएट पोजीशंस.
लाइक यहाँ एक सेंटेंस है शी कम्स हेयर, अब यहाँ पे एक ये एडवर्ब है ऑफन जो हमने पुट करना है, तो हम इसे वर्ब के बाद पुट करेंगे या वर्ब से पहले। तो हम इसे यूँ लिखेंगे शी ऑफन कम्स हेयर या शी कम्स हेयर ऑफन। देन है ही समटाइम्स गोज टू लाहौर या ही गोज टू लाहौर समटाइम्स। सो पुट इट in appropriate position. Then the teacher was late, then you can write here the teacher was hardly ever late। तो was के बाद जो है वो hardly ever late आएगा here। then we are tired by the end of the day, we are usually tired by the end of the day। auxiliary verb के बाद हम adverb को put करेंगे यहाँ पे। I have posted a letter to them, I have just posted a letter to them। सेम वही auxiliary verb के बाद put करेंगे। He did his work carefully या he carefully did his work। तो आप इसे end पे भी लिख सकते हैं, आप इसे pronoun के बाद भी लिख सकते हैं। Further, degree of comparisons, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? ये एडवर्ब की ही तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, लाइक कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो सिर्फ दो लोगों में कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड वैन दैट इवन वैन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड everyone the masjid can listen to and look at the imam। अब यहाँ पे जो most crowded word है वो comparison किया गया है इस मस्जिद का दूसरी मस्जिद के साथ। the masjid still remains to be one of the most visited mountain, मस्जिद अभी भी बहुत ज़्यादा घूमे जाने वाली मस्जिद है। अब यहाँ पे हमने जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को तो यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिव यूज़ करते तो यहाँ पे more visited आता, तो यहाँ पे अभी सिर्फ कंपैरिजन है। अब जो नीचे एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे उसमें हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे, लाइक केप्ट मच, केप्ट मोर, केप्ट द मोस्ट, सेइंग ब्यूटिफुली, सेइंग मोर ब्यूटिफुली, सेइंग मोस्ट ब्यूटिफुली, स्टेप लिटल, स्लेप्ट लिटल, स्लेप्ट मोर लिटल, स्लेप्ट मोस्ट लिटल, लुक्ड गुड, लुक्ड बेस्ट, लुक्ड बेटर, arrived early, arrived earlier, arrived earliest। सो आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है। यूज़ द above degrees of comparison in sentences as given in below। अब इन्हें sentences में यूज़ करना है। they came early in this morning, अगर आप इसे superlative और comparative में चेंज करेंगे तो पहले earlier आएगा then earliest आएगा और इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। Then present perfect tense, continuous tense, you have already done this, so I'm not going to tell you in this video about this exercise। Okay, now exercise D, put for or since in the blank। Now let me tell you where we will use for and where we will use since। for हम इस्तेमाल करते हैं जब वक्त की नौयत का पता हो, वक्त का टाइम जो दौरानिया है वो शॉर्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक 3 hours, 2 hours, 3 days, 2 days, ठीक है। अब वक्त बहुत लॉन्ग है लेकिन वक्त का एग्जैक्ट दौरानिया हमें पता है 1965, लेकिन 1965 का मंथ कौन सा है, 1965 में कौन से डेज़ हैं, 1965 में कौन सी टाइम है, मतलब मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये हमें नहीं पता। तो ऐसा वक्त जो जिसका दौरानिया बहुत बड़ा हो लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि किस वक्त, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंस। इसके अलावा जो डे टाइम्स होते हैं लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इस जगह पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेज़ के नेम, मंथ्स के नेम में भी हम सिंस यूज़ करते हैं, लाइक मार्च, सिंस जनवरी, लेकिन हमें पता नहीं है जनवरी का कौन सा दिन था, ठीक है। सिंस वेनसडे का हमें नहीं पता कि दिन को, शाम को या रात को। सो ऐसे जिनका वक्त पता है लेकिन दौरानिया नहीं पता कि किस वक्त है किस वक्त नहीं, तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं। और जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड फॉर।
सो आई हैव बिन स्टडिंग, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 4. 7 PM, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 7 PM, क्योंकि हमें नहीं पता ये 7 PM मंडे का था, ट्यूसडे का था या किस वक्त का था. 2 वीक्स, ये भी नहीं पता ये किस मंथ के 2 वीक्स थे. सिंस मार्च, ये भी नहीं पता मार्च का कौन सा दिन था. सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये भी नहीं पता कि कब. ही लेफ्ट द स्कूल, ही हैज़ बिन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, वो तब से बैंकॉक में रहे जब से उसने स्कूल छोड़ दिया. तो अब हमें ये नहीं पता कि उसने स्कूल कब छोड़ा था, इस वजह से हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे. Okay, fine. This was all about today's video. I hope you have understood the exercise, that how to solve these exercise. So thank you for watching the video.